हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਐਲਜਬਰਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਸਬਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ ਉਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਵੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਬਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਡਬਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ ਵੀ if and only if W itself is a vector space under the operation of addition and scalar multiplication defined for V। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ V ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਸਬਸਪੇਸ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਸੈਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਬਸੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸਬਸੈਟ ਡਬਲਿਊ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ ਵੀ if and only if W is closed under addition and scalar multiplication। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ W ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 10 ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਸਬ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ 8 ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਬਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ VF ਦੀ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਦੈਨ ਡਬਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੈਲਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਨਵਰਸਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਬਸੈਟ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਬਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਪਲਸ ਵਾਈ ਵੀ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਆਲਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 8 ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੀਲਡ ਲਿੱਤਾ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ -1 ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ ਵੀ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ 0 ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਡਬਲਿਊ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲਿਊ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਵੀ।
तो जे वो दो एलीमेंट V ਦੇ ਵਿੱਚ कम्यूट करते हैं तो नैचुरली उन्होंने सम तो सेम ही रहूगा ना, चाहे वो V 'ਚ होवे चाहे W 'ਚ होवे। ठीक है राजे। तो नैक्सट सेम इस तरीके नाल एसोसीएटिविटी भी लाई करूगी। दैन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वैक्टर स्पेस, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फील्ड एंड 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू W एंड 1 बिलोंग्स टू द फील्ड। ठीक है राजे। तो दो प्रॉपर्टीज़ के नाल आप बाकी दियां जिहड़ियां 8 प्रॉपर्टीज़ सीगियां वो सारे दियां सारियां सैटिस्फाई करवातियां तो शो हो गया कि चाहे तुसीं सारियां ना करो, सिर्फ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लो तो सफिशिएंट है कि जिहड़ा सबसैट आ वो सब स्पेस बन जाऊगा। नैक्सट बच्चे सैकेंड थ्योरम दे विच आपां ने करना है कि प्रूव करना है कि कोई भी नॉन एम्पटी सबसैट W ऑफ ए वैक्टर स्पेस V ओवर F is a subspace of V if and only if for all x y belongs to W we have x minus y belongs to W and for all alpha belongs to F x belongs to W we have alpha x belongs to W। देखो बच्चे वैसे तो जी ये थ्योरम है वो फस्ट थ्योरम के नाल बिल्कुल सेम है, बस उत्थे आपां ने गल करी सी क्लोज्ड अंडर एडिशन की, इत्थे वो गल करते हैं एक्स माइनस वाई की। जिहड़ा एक्स माइनस वाई है उन्होंने तुसीं एक तरीके नाल एक्स प्लस माइनस वाई लिख सकते हो ना, इस तरीके नाल हैगा तो यह एक तरीके नाल क्लोज्ड अंडर एडिशन ही है ना। ठीक है बच्चे। तो इस ना दोनों थ्योरम्स के विच कोई खास फर्क है नहीं, क्योंकि जिहड़ा सैकेंड पार्ट है वो हैगा क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। बस एवें है कि इन्होंने इत्थे सिंबॉलिक फॉर्म दे विच दिता ते उत्थे आपां नूं थ्योरैटिकल फॉर्म दे विच गिवन सीगा। प्रूफ इहदा बिल्कुल सेम है जो फस्ट थ्योरम दा सीगा। नैक्सट आ गई थर्ड थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट भी है तो मोस्टली आपां इहदा यूज़ करांगे एग्जांपल्स नूं सॉल्व करन वास्ते। तो किवें करना तुसीं ये, जिवें दिस नैसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्पटी सबसैट W ऑफ ए वैक्टर स्पेस VF टू बी ए सबस्पेस ऑफ V इज़ दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W। जिहड़ी आपां ने थ्योरम 1 ते 2 कीती है उहदे विच आपां ने दो प्रॉपर्टीज़ की गल करी सी, एक करी सी क्लोज्ड अंडर एडिशन की, एक करी सी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। बट हुण कहंदे ने कि सिर्फ एक कंडीशन ही तुसीं प्रूफ कर दो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W। कहते कि अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W नूं बिलोंग करता है, जिहदे विचों अल्फा ते बीटा होणगे फील्ड दे एलीमेंट्स ते एक्स ते वाई होणगे W दे एलीमेंट्स, तो कहते जिहड़ी W आ वो वैक्टर सब स्पेस बन जाऊगी। वैसे तो देखो बच्चे ये जिहड़ा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है तो ये उही दो ऑपरेशनस ने। एक तो जो अल्फा एक्स नूं अल्फा नूं जो एक्स दे नाल मल्टीप्लाई करते हो तो इट मीन स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगी ना, तो फिर ये भी क्लोज्ड अंडर सब स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो जो तुसी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करोगे ये क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया है ना। तो उन्होंने उन्होंने दोनों नूं कंबाइन करके एक नवी स्टेटमेंट बना ली, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W। ठीक है। तो तुसी हुण अगर कोई भी सबसैट तुहानूं गिवन है, तुसी उहनूं वैक्टर स्पेस प्रूफ सब स्पेस प्रूफ करना है तो तुसी सिर्फ एक कंडीशन प्रूफ करोगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W। अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W नूं बिलोंग कर जाता दैन W इज़ द वैक्टर सब स्पेस ऑफ वैक्टर स्पेस V। ठीक है बच्चे। नैक्सट तुहाडे कोल जिहड़ी फोर्थ थ्योरम है उहदे विच दिता है कि अगर तुहानूं W1 ते W2 दो सब स्पेसिस ने किसी भी वैक्टर स्पेस V दियां तो इन्हां दी जिहड़ी इंटरसैक्शन है W1 इंटरसैक्शन W2 वो भी एक वैक्टर सब स्पेस होगी V दी ही। बहुत ईजी है। देखो जिवें हुण तुहाडे कोल W1 ते W2 ये दोनों वैक्टर सब स्पेसिस हैं। ठीक है, वैक्टर सब स्पेसिस नहीं। हुण आपां ने हुणे एक डेफिनेशन की है कि अगर तुसी किसी भी सबसैट नूं सब स्पेस प्रूफ करना है तो तुसी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करवा दो, है ना। तो तुसी की करो, अल्फा बीटा दो एलीमेंट लो फील्ड दे ते एक्स ते वाई दो एलीमेंट लो W1 इंटरसैक्शन W2 दे। ठीक है, क्योंकि अपने W1 इंटरसैक्शन W2 नूं सब स्पेस प्रूफ करना है ना, तो जिन्हों प्रूफ करना है उहदे विचों ही एलीमेंट कंसीडर करांगे। तो आप प्रूफ करांगे हुण अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसैक्शन W2। ये अपना 2 प्रूफ है। ठीक है, जे प्रूफ हो गया तो प्रूफ हो जाएगा कि W1 इंटरसैक्शन W2 सब स्पेस बन जाएगी। तो हुण तुसी देखो कि अल्फा बीटा जिहड़े एलीमेंट्स सी वो फील्ड के एलीमेंट्स हैं। एक्स वाई W1 इंटरसैक्शन W2 नूं बिलोंग करता है तो दैट इंप्लाइज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू W1 एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू W2।
बिकॉज इंटरसैक्शन च है तो दोनों के सपरेटली बिलोंग करनगे है ना। तो अल्फा बीटा अपने को फील्ड के एलीमेंट्स ने तो एक्स वाई W1 नूं बिलोंग करता है, वेयर W1 एंड W2 अपने को वैक्टर स्पेसिस गिवन ने कि वैक्टर सब स्पेस हैगी है ऑफ V दी है ना। तो बाय डेफिनेशन दिस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 बिकॉज W1 इज़ ए वैक्टर सब स्पेस। तो उपर आप थ्योरम नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W2 बिकॉज W2 इज़ ऑल्सो ए वैक्टर सब स्पेस, ठीक है ना। तो हुण जदों अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 नूं भी बिलोंग कर गया, W2 नूं भी बिलोंग कर गया, दैट मीनस दोनों की इंटरसैक्शन दे विच आ जाऊगा ना। अल्फा एक्स बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसैक्शन W2, तो यही अपना 2 प्रूफ सीगा। मीनस प्रूफ हो गया कि अगर तुसी 2 एलीमेंट फील्ड दे लैंदे हो तो 2 एलीमेंट इंटरसैक्शन चो लैंदे हो तो उन्हां दा जिहड़ा कॉम्बीनेशन बनदा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वो भी इंटरसैक्शन नूं बिलोंग कर जूगा। तो इंटरसैक्शन की बन जूगी, सब स्पेस बन जूगी, ठीक है बच्चे। तो जिहड़ी इंटरसैक्शन करके सब स्पेस बनती है वो लार्जेस्ट सब स्पेस हुंदी है जिहड़ी कि W1 ते W2 दोनों च कंटेन करती है, ठीक है ना। नैक्सट आ जाता है कि जी यूनीयन है 2 सब स्पेसिस की वो जरूरी नहीं होंदा कि ऑलवेज सब स्पेस बने, क्योंकि जी इंटरसैक्शन है वो तो आप प्रूफ कर चुके हैं कि जो तुम 2 सब स्पेसिस लैने हो तो उन्होंने जी इंटरसैक्शन आती है दैट इज़ ऑलवेज अ सब स्पेस। बट जो तुम यूनीयन करते हो किसी भी 2 सब स्पेसिस की तो जरूरी नहीं होंदा कि सब स्पेस बने। तो वो इन्होंने एक एग्जाम्पल कंसीडर की है जिमें V3R मीनस 3 डायमेंशनल वैक्टर स्पेस कंसीडर की ओवर द रियल नंबर्स जिमें X Y Z है ना। तो तुम ये 2 सब स्पेसिस लिती हैं, एक लिती X0 0, एक लिती 0Y0, एक लिती 0Y0। तो प्रूफ करना है कि जी W1 एंड W2 ने पहला तो इन्होंने सब स्पेसिस प्रूफ करो। तुसी ये 2 एलीमेंट रियल दे लिते, 2 एलीमेंट U ते V दे लिते, तो अल्फा U प्लस बीटा ऑफ V बिलोंग कर गया W1 नूं, ठीक है रजे। तो इधर W1 सब स्पेस प्रूफ हो गया। सेम इदा ही तुसी W2 नूं भी सब स्पेस प्रूफ कर सकते हो। बट तुसी देखो कि जो इन्हों की यूनीयन करोगे मीनस कि X0 0 0Y0 के एलीमेंट्स नूं कंबाइन करोगे तो वो एक एलीमेंट होगा जोड़ा कि जिमें अल्फा ऑफ W1 प्लस बीटा ऑफ W2 तुसी कंसीडर किया है ना, तो वह W1 नूं बिलोंग नहीं करूगा, ना ही वो W2 नूं बिलोंग करता है। जो वो किसी एक च भी नहीं आया दैट मीनस यूनीयन च भी नहीं आ सकता ना। तो इतों प्रूफ हो गया कि W1 यूनीयन W2 सब स्पेसिस नहीं हो सकदियाँ। नैक्सट फिर आ जाता है कि जी W1 यूनीयन W2 है फिर वो सब स्पेस बनूगी कदों, फिर वो एक पर्टिकुलर कंडीशन आप ला दें कि जी W1 यूनीयन W2 है वो सब स्पेस तां बनती है अगर इन्होंने दोनों चों कोई एक दूजे च कंटेन करता हो, मीनस कि जां तां W1 W2 का सबसैट हो जां फिर W2 W1 का सबसैट हो। तो ये वास्ते तुसी अज्यूम करके चलोगे जिमें 2 केस बनावांगे कि आप पहला यूनीयन सब स्पेस मान के चलांगे, कंटेनमेंट शो करांगे, फिर आप ये चीज़ मान के चलांगे इनू सब स्पेस यूनीयन नू प्रूफ करांगे। तो फस्टली आप मान के चलते हैं कि अगर यूनीयन सब स्पेस है ना तो ओबवियसली हुण जो W1 है वो W1 यूनीयन W2 का सबसैट तो है ही है ना। सब स्पेस है तो यूनीयन भी सब स्पेस मान लो आप सपोज किया आप प्रूफ करना है कि कंटेनमेंट है कि या तो W1 W2 का सबसैट है या W2 W1 का सबसैट है। मान लें कि जो W1 ना तो W1 W2 का सबसैट है ना ही W2 W1 का सबसैट है। अगर W1 W2 का सबसैट नहीं हैगा तो दैट मीनस एक एलीमेंट होगा W1 दे विचों जो W2 नूं बिलोंग नहीं करूगा। सेम इदा ही एक एलीमेंट होगा Y W2 का जोड़ा कि W1 नूं बिलोंग नहीं करूगा। हुण X अगर W1 का एलीमेंट है बट वो यूनीयन च तो आ ही सकता है ना क्योंकि W1 च तो है ही एटलीस्ट, तो इट मीनस वो W दे विच चला जाऊगा। सेम इदा ही Y भी W च चला जाऊगा बट W तो अपने को सब स्पेस गिवन है, सब स्पेस गिवन है तो इट मीनस X प्लस वाई यूनीयन दे विच चला गया। हुण जो X प्लस वाई है अगर वो यूनीयन च है दैट मीनस किसी एक च तो होगा W1 च होगा या फिर W2 दे विच होगा। प्लस अपने को W1 च है X भी W1 च है तो बाय थ्योरम नंबर 2 दोहां की सबट्रैक्शन भी W1 च होगी। दैट मीनस Y W1 नूं बिलोंग कर गया बट Y तो W1 च नहीं सीगा तो दैट मीनस कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो इट मीनस X प्लस वाई
W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ x + y W2 ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਨਵਰਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ W1 ਜੇਕਰ W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ W2 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸੈੱਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। W2 ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਥਿਊਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ।